press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. बेल आइकन दबाइए, Adda247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए. Adda247, government job in your pocket. Hello friends, this is Anchal and I welcome you all on a show of Adda247, and that is based on sentence completion. So sentence completion is something that is referred to as when you are given with a sentence in a question, and from that sentence one part of it will be eliminated. It can be in the beginning, it can be at last, or it can be in the middle as well. So sentence completion का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक या दो sentences given होंगे, right? At one point of time ऐसा हो सकता है कि इसका पहला पार्ट, beginning का पार्ट is missing, or it can happen middle का पार्ट missing है, और the last का पार्ट can be missing as well. So question जो आ सकता है वो miss होने का आएगा. That means you have to complete the sentence making a grammatically and a meaningful sentence. So completion can come beginning में आ सकता है, middle में आ सकता है, and last part can be eliminated as well. But guys, पूरी की पूरी तरह से ये जो exercise है, this is totally based on your reading skill. Reading skill, but one more thing is important, that is logical. Creating logic between the sentences. Sentences के बीच में logic बनाना is very important here. Why? Because maybe if you get, obviously you'll get 5 options. If you get 5 options, there might be a condition that 2 statements are correct according to your sentence. आपके sentence के according 2 statements ऐसे हैं जो इसमें लिखे जाएंगे, but then इन दोनों के बीच में difference create करना होगा, और ये difference कैसे create होगा? This will be created logically. So a sentence that is logically connected to the statement given will be your answer. ये क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप रीड कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप रीडिंग स्किल अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, यू विल बी ईजी, यू विल फाइंड दिस ईजी टू सॉल्व. बट अगर रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है सेंटेंस कंप्लीशन में. कनेक्टर्स और कंप्लीशन आर 2 डिफरेंट पार्ट्स. कनेक्टर्स से व्हाट, कनेक्टर्स कहते हैं कि आपको 2 सेंटेंस दिया है, यू हैव टू कनेक्ट इट यूजिंग 3 ऑप्शंस गिवन आफ्टर देम. बट कंप्लीशन डिफाइंस दैट यू हैव a blank in between in the beginning or at the end of this at the end of the sentence. In that case you have to add 1 sentence from the given 5 sentences. More than 1 statement can be fixed there, but from those 2 or 3 sentences you have to make a logical sentence out and make it connect to the sentence. ठीक है, make it connect to the sentence with grammar and लॉजिकल मीनिंग करेक्टेड, राइट. सो हियर यू हैव द क्वेश्चंस. अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. 15 क्वेश्चंस आर देयर दैट वी आर गोना डिस्कस टुडे, बट आपको रीडिंग स्किल का ध्यान रखना है. इफ़ यू वांट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, यू कैन इम्प्रूव, यू मस्ट इम्प्रूव योर रीडिंग skill. Okay, so let's have the first question on screen and let's see what do we, okay, here's the direction किस तरह से solve करना है, that I've already told you. Select the correct phrase from among the choices that completes the given sentence. तो जो भी sentence दिया है, you have to complete that sentence, and for making that complete sentence, you have to select the correct phrase from the given option. Please note that more than one choice may fit in to make a syntactical meaning or syntactical correct sentence. That means there can be a condition where you have 2 or more options relating to the sentence having a same meaning, but select the choice that is logical in context of the sentence. But from those options which are more than 2 in number, you have to select one option that is logically connected to the context of the sentence. Got it? Now let's move on to our first question. That is, when something works well for us, we often dash. Now here in this question you have the blank at the end of the sentence, right? यहाँ पर जो blank आपका है वो sentence की आखिर में दिया हुआ है. कह रहे हैं when something works well for us we often do dash. So जब हमारे लिए कोई चीज़ अच्छी होती है, जब हमारे साथ कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम क्या करते हैं? We often perform, we often do, we often what? Why am I saying that we need to mention perform, do or something like that? That means we need to perform or we need to do. That means we need to place a verb here, because often is a word that is used in adverb. Often वो शब्द है जो adverb में यूज़ होता है. तो अगर adverb में यूज़ हो रहा है, एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर verb का यूसेज करेक्ट होगा, राइट.
तो देखो क्या होगा, when something works well for us, we often keep it to ourselves, try to make it impossible, sound that we are godly, want to share it with others, or try to make it difficult. जब हमारे साथ कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम क्या चाहते हैं, we often keep it to ourselves, क्या हम अपने तक रखते हैं उसको? नहीं. If we are happy तो हम चाहते हैं कि हम सबको बता दें, जो हमारे क्लोज वंस हैं उनको बता दें, right? Keep it to ourselves, that means कि you don't want to share it with anybody else, so you don't do that, right? When something works well for us, we often try to make it impossible. अगर कोई चीज़ already हो चुकी है, when something is already performed, how will you make it impossible? It cannot be done, right? So B भी eliminate हो गया. When something works well for us, we often sound that we are godly. अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो हम भगवान के जैसे अपने आप को, एंजल के जैसे अपने आप को बिहेव करने लग जाते हैं या इस तरह से बात करने लग जाते हैं, दैट वी आर प्राउड ऑफ वन सेल्फ. बट प्राउड इज़ अ पॉजिटिव वर्ड. आप नेगेटिव हो जाते हो या आप बहुत ज़्यादा घमंड दिखाने लग जाते हो, दैट इज़ वॉट वी मीन बाय दिस. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑल्सो एलिमिनेटेड. सो सम पीपल डू दैट, लेकिन यहाँ पर हमें उसको यूज़ नहीं करना है. फिर when something works well for us, we often want to share it with others. जब हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम दूसरों से उसको शेयर करना चाहते हैं. So want to share it with others. You want to share it with the people, the close ones that you have around you. And try to make it difficult. क्या कोई चीज़ होने के बाद you can make it difficult? Can you make it difficult? No, right? So option number D is absolutely correct for question number 1. Question number 1 के लिए option number D आपका बिल्कुल सही आंसर होगा. Now let's move on to the next question. So here it is, when science goes berserk, society loses its moorings, sanity begins to play truant and dash. So here we have sentence which begins with when. So we have a lot of conditions, right? हम बहुत सारी conditions की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी conditions हो रही है. क्या क्या conditions? जब science को क्या हो जाए, society को क्या हो जाए, तो sanity क्या हो जाती है. Here we are talking about science goes berserk. Berserk का मतलब होता है mad, crazy, something like that. ठीक है, तो जब science ही crazy तरह behave करने लग जाए, मतलब without thinking it acts, then what will happen? Society loses its moorings. मतलब society का जो एक किसी चीज़ पे कंट्रोल है वो लूज करना स्टार्ट कर दे. Sanity begins to play truant and dash happens. So obvious सी बात है, हमने क्या किया है, something goes somewhere, मतलब science is going somewhere, science is doing goes, then we have the word society loses, then we have sanity begins. So if we are having and here, either you will succeed it by a noun, या तो इसके बाद noun लगा दो या फिर you will place a verb. If you have a noun in the sentence, that would be correct, but if you have a verb, that would also be correct, right? So let's see. And result in neglect of basic human values, and moral decline sets in, and further plays havoc with nature, and the significant elements take shape, and positive results begin to show. See, when we are referring to something that shows negativity, जब कोई चीज़ नेगेटिविटी को डिफाइन कर रही है, ऑब्वियसली बात है कि हम क्या बात करें, बरसाक होने के, मतलब मैड होने के, क्रेजी होने के बात करें. मूरिंग्स मतलब वो अपना कंट्रोल लूज कर रही है, अपना कंट्रोल, अपना एंकर ख़त्म कर रही है. सेनिटी का मतलब क्या होता है, सोचने की शक्ति, द केपेबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग. सेनिटी बिगिन्स टू प्ले ट्रूएंट, मतलब सोचने की शक्ति आपको खराब तरीके से बिहेव कराने लग जाती है. तो इसका मीनिंग क्या होगा? Obviously the sentence given is positive or negative. The sentence given is negative about the society, about the people living in it, right? Sentence negative है उस society के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो society में रह रहे हैं. Which means here the sentence will do what? यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि आप positive sentences को हटा दोगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स बिगिन टू शो. ई वाला जो ऑप्शन है पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाएगा, दैट विल बी एलिमिनेटेड. देन यू हैव द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स टेक शेप, मतलब क्या हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने लग जाएंगे. सो अगेन दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस विच विल बी एलिमिनेटेड. नाउ यू आर लेफ्ट विद ए, बी एंड सी. रिजल्ट इन नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज. क्या बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, प्रिंसिपल्स का निगलेक्ट हो जाएगा? प्रिंसिपल्स निगलेक्ट हो जाएंगे, उनको नजरअंदाज कर दिया जाएगा? नहीं. फिर
मॉरल डिक्लाइन सेट्स इन, ऑब्वियसली जब सोसाइटी ऐसे होने लग जाएगी, सोसाइटी डाउनफॉल में आ जाएगी, साइंस क्रेजी बिहेव करने लग जाएगा, तो उसी तरह से लोगों के मॉरल भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा. डिक्लाइन सेट्स इन मतलब लोग सोचने समझने की शक्ति अपनी खोने लग जाएंगे. एंड देन फर्दर प्लेस वॉक विथ नेचर, नेचर की बात नहीं करेंगे. ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दैट इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेट अवे टू योर सेंटेंस which shows science goes berserk, society loses moorings, sanity begins to play, moral decline sets in, right? So option number B is absolutely correct for question number 2. Now let's move on to the third question. It says talks and negotiations to resolve the dispute have taken place from time to time, but any attempt dash. कह रहे हैं talks और negotiations जो होते हैं resolve करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को, लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, हैव टेकन प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. बातें हुई हैं, नेगोशिएशंस हुए हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को टाइम सॉल्व करने के लिए समय समय पर, बट एनी अटेम्प्ट डैश, लेकिन कोई भी अटेम्प्ट. सो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप ये कह रहे हो कि टॉक्स एंड नेगोशिएशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं, इफ़ यू आर रेफरिंग दैट टॉक्स एंड नेगोशिएशंस हैव ऑलरेडी हैपेंड, सो व्हाट विल बी योर कॉन्टेक्स्ट. तो क्या होगा आपका कॉन्टेक्स्ट. तो ये चीज़ हो चुकी है, समथिंग इज डन, बट देयर इज अ वर्ड बट रिटन इन द सेंटेंस, लेकिन वहां पर एक शब्द आ गया बट. तो ऑब्वियस ही बात है बट क्या शो करता है, कॉन्ट्रडिक्शन. इफ टॉक्स एंड नेगोशिएशंस हैव हैपेंड टू रिजॉल्व द इशू, सो ऑपोजिट वाला क्या होगा, कुछ नेगेटिव लेके आएगा, राइट. ऑपोजिट वाला क्या होगा, कुछ नेगेटिव लेके आएगा. दैट मीन्स आपको क्या लिखना है, टू फॉर्ज एन अग्रीमेंट वॉज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी. क्या, लेकिन बट इन एनी अटेम्प्ट टू फॉर्ज एन अग्रीमेंट वॉज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी, लेकिन जो अग्रीमेंट बनाया गया था वो एक रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमिटी के द्वारा लाई गई थी. सो हियर वी आर नॉट रेफरिंग टू, रादर ये कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर ही नहीं रहा है ना, ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है. दिस डजंट एक्सप्लेन द बट पार्ट. देन टू रिजेक्ट द अग्रीमेंट वॉज नॉट फॉर्मुलेटेड, क्या अग्रीमेंट को रिजेक्ट करना फॉर्मुलेट नहीं हुआ था. फिर एट रीचिंग अ सोल्यूशन हैज़ प्रूव्ड अबॉर्टिव, मतलब बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, लेकिन सोल्यूशन तक पहुंचना अबॉर्टिव रहा. दैट मीन्स वो सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाए. देयर वाज नो कंक्लूजन टू द टॉक्स एंड नेगोशिएशंस दैट दे हैव. फिर टू एक्वायर डार्क शेड्स हैज़ बीन इनकॉन्सिक्वेंशियल. फिर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आगे भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी. सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. बिल्कुल सही होगा. क्यों, क्योंकि टॉक्स और नेगोशिएशंस हुए लेकिन किसी भी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे, मतलब डिस्कशंस वर देयर, नेगोशिएशंस वर देयर, टॉक्स वर हैपेंड देयर, बट नोबडी रीच्ड टू अ परफेक्ट सोल्यूशन टू दैट आंसर, या फिर एक कंक्लूजन उससे नहीं निकल पाया. ठीक है, तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव देयर. एक्शन इज द ग्लोरियस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड द ओनली वन दैट सेव्स मैन फ्रॉम डैश. एक्शन मतलब इंसान की जो करने की, कुछ भी करने की शक्ति है, एक्शन उसको कहते हैं. इज द ग्लोरियस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, वो लाइफ का उसका किस तरह का प्रिंसिपल है, ग्लोरियस प्रिंसिपल है. मतलब आप सिद्धांत की बात करिए, टॉकिंग अबाउट द बिलीफ, द प्रिंसिपल दैट अ पर्सन हैज, वैल्यूज दैट अ पर्सन हैज, और वो ग्लोरियस है मतलब पॉजिटिव है, राइट. ग्लोरियस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड द ओनली वन दैट सेव्स मैन फ्रॉम डैश. और ये वही एक चीज़ है जो इंसान को बचाती है, किससे, मैन सेव्स मैन फ्रॉम द यूज ऑफ फैकल्टीज, फिजिकल और मेंटल, द यूज ऑफ और अदर सेव्स मैन फ्रॉम स्टैग्नेशन एंड अनहैप्पीनेस, दैट सेव्स मैन फ्रॉम द sorrow of fellow beings, that saves man from the prerequisites of happiness, and that saves the man from use of his intellectual capacity. Now guys, देखो अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें पॉजिटिविटी की, राइट. वी आर रेफरिंग टू पॉजिटिविटी एंड अ वर्ड जस्ट बिफोर द ब्लैंक से सेव्स मैन, अ वर्ड just before the blank says saves man from. So saving from something that is negative, right. अगर बचाएगा इंसान को कोई चीज़ बचा रही है तो बचाएगी किससे,
किसी नेगेटिव चीज़ से ही बचाएगी ना. सो देयर वोंट बी एनी पॉजिटिव वर्ड आफ्टर फ्रॉम हियर. फ्रॉम के बाद कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है किसको, कि पूरी तरह से एंड द ओनली वन दैट सेव्स मैन फ्रॉम. और सिर्फ एक चीज़ यही है कि ग्लोरियस प्रिंसिपल सिद्धांत है जो लाइफ के, जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की, ये चीज़ इंसान को किससे बचा सकती है? स्टैग्नेशन एंड अनहैप्पीनेस से. एज आई टोल्ड यू, वी नीड टू मेंशन अ नेगेटिव वर्ड हियर. नेगेटिव चीज़ लगानी है तो स्टैग्नेशन मतलब रुक, जो सब चीज़ स्टैग हो जाए, अलग हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, ख़त्म हो जाए या सेपरेट हो जाए. एंड अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस से दूर रखेगी. फ्रॉम अनहैप्पीनेस हो सकता है ना. द यूज़ ऑफ फैकल्टीज़ फिजिकल और मेंटल, यहाँ पर हम इससे कोई बात नहीं करेंगे. फैकल्टीज़ वैसे मतलब टीचर्स नहीं होता, फैकल्टीज़ का मतलब डिपार्टमेंट भी होता है. दैट सेव्स मैन फ्रॉम द सॉरो ऑफ फेलो बींग्स. सॉरो ऑफ फेलो बींग्स मतलब आसपास के जो लोग रहते हैं आपके, उसके दुख से बचाएगी. सो आर वी रेफरिंग टू समथिंग जो दूसरों के दुख से बचाने की बात करे? नहीं. द प्री रेक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आपको किसी प्लान को प्रोसेस करने से पहले चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द प्री रेक्विजिट्स ऑफ ट्रैकिंग आर कि आपके बैग में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए. लाइक यू मस्ट हैव a water bottle, you must have a blade, you must have a rope, you must have shoes with you. तो मतलब प्री रेक्विजिट्स का मतलब होता है whenever you are about to implement a plan, तो उस प्लान से पहले आपको जो जो चीज़ें चाहिए, that is what we mean by prerequisites. Prerequisites of examination मतलब क्या होता है? You need to practice before that, right? Prerequisites of examination का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए. So the correct word would be B, और rather correct sentence would be B जो इसको conclude करेगा और correct sentence निकालेगा. Action is the glorious principle of life and the only one that saves man from stagnation and unhappiness. Now let's move on to the fifth question. Here it is. Some of the banned substances for which Indian sports persons have been tested positive are so highly priced that dash. कह रहे हैं कुछ जो बैंड सब्सटेंसेस हैं, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको यूज़ करना अलाउड नहीं है, फॉर विच जिनको यूज़ करना अलाउड नहीं है, और इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव, जिसके लिए इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को पॉजिटिव टेस्ट किया गया है, आर सो हाईली प्राइस्ड, वो इतने ज़्यादा प्राइस पे बेचे जाते हैं दैट, या फिर उनकी इतनी ज़्यादा प्राइस लगाई जाती है दैट व्हाट हैपन्स, that no ordinary sportsman would be able to buy them on his own. मतलब कि कोई भी ऑर्डिनरी स्पोर्ट्समैन उसको अपने आप से तो नहीं खरीद सकता, खुद से तो नहीं खरीद सकता. हो सकता है ना. दिस क्रिएट्स अ लॉजिकल मीनिंग. वाई? बिकॉज एक्सपेंस की बात हो रही है तो हो सकता है कि खुद से ना खरीद पाए. फिर लिखा है एनी ऑर्डिनरी स्पोर्ट्समैन वुड हैव बॉट देम ऑन हिज ओन. कोई भी ऑर्डिनरी स्पोर्ट्समैन पर्सन खरीद सकता है, स्पोर्ट्समैन खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता. कह रहे इतना ज़्यादा चार्ज किया जाता है, इतना ज़्यादा प्राइस होता है कि हम नहीं खरीद सकते. तो यहाँ बी वाला तो ये कह रहा है खरीद सकते, तो हाईली प्राइस्ड है, इसकी वजह से हम वुड हैव बॉट का यूसेज नहीं दिखाएंगे. फिर मैनी स्पोर्ट्समैन वर मेड दैट गिनी पिग्स. मैनी स्पोर्ट्समैन वर मेड द गिनी पिग्स. अच्छा, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को गिनी पिग्स बना दिया गया था. इज इट, डज दिस मेक एनी सेंस? नो. The coaches encouraged their students to take them in the hope of द्रोणाचार्य award. कह रहे हैं कोचेस ने encourage किया था अपने स्टूडेंट्स को उसे लेने के लिए जैसे कि एक द्रोणाचार्य अवार्ड उनको मिल रहा हो. तो ऐसा तो यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, कोचेस की तो कोई बात नहीं आ रही है. फिर स्पोर्ट्स पर्सन एंड द कोचेस अनहेजिटेटिंगली यूज देम इन सर्च ऑफ ग्लोरी. अच्छा, स्पोर्ट्समैन और कोचेस इसको यूज़ करते हैं, वो चाहते नहीं है यूज़ करना, अच्छा यूज़ करते हैं अनहेजिटेटिंगली, मतलब बिना किसी से डरे, बिना किसी के डर के वो यूज़ करते हैं इन सर्च ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी के तलाश में. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पर ग्लोरी की बात हो नहीं रही है, कोचेस की बात हो नहीं रही है, स्पोर्ट्समैन के एक सब्सटेंस को खरीदने की बात हो रही है, और ख़रीदने की बात सिर्फ ए और बी में दी गई है, जिसमें से एक लिखा हुआ है कि खरीद सकता है, दूसरा लिखा हुआ है खरीद नहीं सकता है. और वहाँ पर बोला है कि सो एक्सपेंसिव, इतना ज़्यादा हाईली प्राइस किया जाता है, इतना ज़्यादा प्राइस उसको उसके लिए कोट किया जाता है दैट डैश, कि उसको खरीदना एक ऑर्डिनरी स्पोर्ट्समैन के लिए काफ़ी नहीं होगा या फिर उसके लिए सक्षम नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Now let's move on to the next question.
If the IT revolution is expected to generate incomes at a very high rate, कह रहे हैं अगर IT revolution में ये expect किया जाता है कि वो income को generate करे बहुत ऊंचे रेट पर, बहुत हाई रेट पे, तो the progress should be steady though slow. प्रोग्रेस क्या होनी चाहिए? स्टेडी होनी चाहिए, मतलब ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है ना बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, लेकिन चलती रहनी चाहिए. शुड बी स्टेडी दो स्लो. अब स्लो है लेकिन उसको स्टेडी होना चाहिए, ठीक है, भले वो स्लो हो जाए, लेकिन वो चलती रहे. दिस इज व्हाट दे वांट. तो प्रोग्रेस होनी चाहिए भले वो कम हो रही हो. फिर लिखा है द विलिंगनेस टू डू सो विल इन्फ्लुएंस इट. अगर हम करने की चाह रख लें तो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है. फिर द डिमांड शुड इंक्रीज कंसिडरेबली. उसका डिमांड बहुत सिग्निफिकेंटली, बहुत इंपॉर्टेंटली बढ़ना चाहिए, इतना कंसिडरेबली बढ़ना चाहिए कि उसको नोट किया जा सके. देन expensive and arduous IT education packages must be introduced. Expensive and arduous IT education packages must be introduced. क्या expensive अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सोसाइटी उसको खरीद पाएगी? क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं. अगर हम बोलते हैं एक्सपेंसिव और आर्डुअस बना दो या इंट्रोड्यूस कर दो, तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. इफ़ द IT रेवोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इनकम एट अ वेरी हाई रेट. अगर वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई रेट पे उनका इनकम जनरेट हो तो वो क्या करें? द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स वुड बी सब्सटैंशियल. कह रहे हैं इफ़ द IT रेवोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इनकम्स एट अ वेरी हाई रेट, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स वुड बी सब्सटैंशियल. अगर वो चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़े, अगर वो चाहते हैं कि उनकी इनकम बहुत हाई रेट पे बढ़े, तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. क्या? कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब्सटैंशियल हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, लेकिन सब्सटैंशियल हो. ठीक है, और ऐसी हो कि आप पूरी तरह से उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन. Dash is one way of ensuring that the public knows you are there. अब देखो यहाँ पर beginning में blank दिया हुआ है, right? कह रहे हैं dash is one way of ensuring that the public knows you are there. कह रहे हैं एक तरीका है क्या करने का? Dash is one way of ensuring, ये निश्चित कराने का कि पब्लिक को पता चले कि तुम वहाँ पर हो. ठीक है, ये एक तरीका है कि पब्लिक को पता चले कि तुम वहाँ पर हो. दिस इज वन काइंड ऑफ a way where you can get the public known कि इस वहाँ पर आप present है, that you present there. ठीक है, तो advocating for the blissfulness of ignorance, stirring up controversies and making news, flooding the people with too much of inaccurate information and taking maximum benefit from a deal, giving up you wealth. तो अपनी wealth छोड़ दोगे, अपनी wealth खो दोगे तो क्या उससे कुछ होगा? नहीं होगा. So option number E is eliminated. देन डी में दिया है टेकिंग मैनी बेनिफिट फ्रॉम अ डील. कई सारी, मतलब एक डील में से बहुत सारे बेनिफिट लेने से पब्लिक को क्या असर पड़ेगा? पब्लिक ये जानेगी कि आप हैं नहीं. सो अगेन डी इज एलिमिनेटेड. फिर फ्लडिंग द पीपल विथ टू मच ऑफ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. इफ यू से दैट यू आर टेलिंग पीपल कि आप अलग अलग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये बताता है कि आप वहाँ पर प्रेजेंट है, आप वहाँ पर हैं नहीं. स्टरिंग अप कॉन्ट्रोवर्सीज एंड मेकिंग न्यूज़. बिल्कुल, कॉन्ट्रोवर्सी एक बार हो चुकी है, एक इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब उसको बढ़ाते रहोगे और उससे न्यूज़ बनाते रहोगे तो पब्लिक को पता चलेगा कि हाँ आप वहाँ पर हैं. न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं? मीडिया में क्या होता है, अगर कोई न्यूज़ होती है और उस न्यूज़ को वो सबसे पहले प्रेजेंट कर देते हैं, SSC स्कैम हुआ, अगर मीडिया उसको सबसे पहले प्रेजेंट कर दे, जो भी मीडिया जो भी चैनल उसको सबसे पहले प्रेजेंट करेगा, उसमें क्या होता है? उसमें उसकी वाहवाही होती है कि हमें इस चैनल से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले चीज़ों का पता चल जाता है, न्यूज़ का पता चल जाता है. तो जो कंट्रोवर्सीज़ को जल्दी से जल्दी बढ़ाए और जल्दी से जल्दी उसका न्यूज़ बना दे, उसको उससे आप इंश्योर कर सकते हो. ये एक तरीका है इंश्योर कराने का कि आप पब्लिक के बीच में मौजूद हैं. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज एडवोकेटिंग फॉर द ब्लिसफुलनेस ऑफ इग्नोरेंस. ये तो नहीं होगा कि एडवोकेट करें मतलब किसी के हित के लिए लड़ रहे हैं, इग्नोरेंस के हित के लिए लड़ रहे हैं, नहीं. सो ऑप्शन नंबर इग्नोरेंस, जो चीज़ इग्नोर करने लायक है उसके हित के लिए लड़ोगे तो तुमसे कोई कुछ कहेगा ही नहीं. नोबडी वुड से एनीथिंग, इनफैक्ट आपको ऑपोजिट ही बोला जाएगा, है ना. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग आंसर नंबर बी होगा उसका बिल्कुल सही आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Through poetry, dash can be drawn towards the imperishable beauties of the universe with no cost and consternation. अब देखो यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर जो ब्लैंक है वो आपके सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है। कह रहे पोइट्री के थ्रू, पोइट्री के माध्यम से डैश कैन बी ड्रॉन, क्या निकाला जा सकता है, टूवर्ड्स द इम्पेरिशेबल ब्यूटीज ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स की जो सुंदर चीज़ें हैं और जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इम्पेरिशेबल है, जो कभी ख़राब नहीं हो सकती, उनकी ब्यूटीज़ के लिए या उनकी ब्यूटी से क्या निकाला जा सकता है, विद नो कॉस्ट एंड कॉन्स्टर्नेशन, मतलब बिना किसी पैसे को खर्च किए और ना ही किसी टेंशन के आप क्या कर सकते हो। थ्रू पोइट्री द अटेंशन ऑफ द लेथार्जिक एंड द इनर्ट कैन बी ड्रॉन, थ्रू पोइट्री the entire gamut of human passions and pathos can be drawn. Through poetry, all types of real or imaginative literature can be drawn towards the imperishable beauties. Through poetry, the latent talent of writing can be drawn, and through poetry, that section of society which thinks in a negative way can be drawn. अच्छा ये बताओ, पोइट्री जब पढ़ने जाते हो तो क्या कभी कुछ नेगेटिव लगता है, क्या कुछ नेगेटिव समझ में आता है? नहीं। कह रहे पोइट्री के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इम्पेरिशेबल ब्यूटीज़ ऑफ यूनिवर्स है, मतलब जो यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जो कभी ख़राब नहीं हो सकती, उस ब्यूटी में से आप क्या निकाल सकते हो। थ्रू पोइट्री द अटेंशन ऑफ द लेथार्जिक एंड द इनर्ट, वो अटेंशन, किसका अटेंशन आ जाएगा, वो जो लोग लेज़ी हैं, वो लोग जो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो लोग भी यूनिवर्स की ब्यूटी को क्या करने लगते हैं, प्रेज़ करने लगते हैं पोइट्री के थ्रू। जो मतलब अगर कोई इंसान है वो कहीं नहीं जाता, बहुत लेज़ी पर्सन है, लेकिन अब अगर आप उसको बहुत सुंदर एक पोएम सुना दोगे तो वो भी सुनने लग जाएगा। तो कह रहे हैं पोइट्री के माध्यम से कि दुनिया में कितनी भी अच्छी, कितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, उन सब को प्रेस करने लगता है। द अटेंशन ऑफ द लेथार्जिक, जो लेज़ी लोग हैं, जो इनर्ट लोग हैं, उन लोगों की भी अटेंशन वो लेके आती है अपनी तरफ। तो बिना इसको कोई कन्फ्यूजन के हम आंसर मार्क कर सकते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो आई सपोज ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। When trying times come, when trying times comes, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपके दिक्कत के दिन आ जाते हैं, trying circumstances, trying days, trying times का मतलब होता है जब आपका predicament आ जाता है, that means the bad days of your life, जब आ जाता है, dash from those who have struggled and subdued the defiant destiny। तो जब आपका ख़राब समय आ जाता है तो आप क्या करते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपनी डेफिएंट डेस्टिनी, मतलब बेकार की डेस्टिनी, या जिन्होंने बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल देखा है, ऐसे स्ट्रगल वाली ज़िंदगी को, या फिर ऐसी चीज़ें जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनको नीचा दिखाया, ऐसी लाइफ की से क्या लेते हो, डैश फ्रॉम दोज, क्या करते हो उनसे। ठीक है, वन शुड लर्न अ लेसन, वन शुड टेक एन एग्जाम्पल, वन शुड गेट द इंस्पिरेशन, वन शुड गेट प्रिजर्व एंड प्लॉड, वन शुड बी ग्रेटफुल। क्या करोगे, खुद सोचो क्या करोगे आप। उनसे लेसन लोगे, ले सकते हो, आप उससे एग्जाम्पल लोगे, ले सकते हो, आप उनसे इंस्पिरेशन लोगे, ले सकते हो। वन शुड परसिवियर, प्रिजर्व नहीं, परसिवियर एंड प्लॉड। तो हम क्या परसिवियर करेंगे या प्लॉड करेंगे, या फिर हम वन शुड बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल आप उस चीज़ के लिए होते हो जो चीज़ आपके साथ हुई है और आप किसी और को उसका श्रेय देना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू माई डैड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने पिता की तरफ ग्रेटफुल हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश सिखा दी। तो दैट इज़ वॉट वी मीन बाय ग्रेटफुल। यहाँ पर व्हेन ट्राइंग टाइम्स कम, जब आपके ख़राब दिन आते हैं या किसी के भी ख़राब दिन आते हैं, वन शुड लर्न अ लेसन, एग्जाम्पल या इंस्पिरेशन। क्या करोगे, लेसन लोगे, लेसन आप लेकर, अब वो यूज़ होगा या यूज़ नहीं होगा वो नहीं पता। एग्जाम्पल लोगे, एग्जाम्पल यूज़ होगा या यूज़ नहीं होगा नहीं पता। लेकिन इंस्पिरेशन का मतलब होता है इफ़ यू हैव फेल्ड इन लाइफ, if somebody inspires you, आप वापस से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि बैड डेज में भी आप इंस्पिरेशन लेंगे तो आप वापस से काम करना स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो सही सेंटेंस क्या हुआ, वन शुड गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज हु हैव स्ट्रगल्ड एंड सबड्यूड द डिफिएंट डेस्टिनी। करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी व्हाट वी हैव देयर। द ग्रेटर आवर नॉलेज इंक्रीजेज द मोर डैश, जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाती है उतना ज़्यादा क्या होता है, अफ्लुएंस वी एक्वायर, आवर विजडम ग्रोस, अपॉर्चुनिटीज़ वी सीक, वी बिकेम
अवेयर ऑफ आर इग्नोरेंस, क्राफ्टी वी बिकम। अब बताओ यहाँ पर क्या लगना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक होना क्या चाहिए यहाँ पर इस कंडीशन में, कि कह रहे हैं किस चीज़ की बात करें, जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी उतना ज़्यादा हम क्या करने लग जाएंगे, क्या करने, अफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, देखो एफ्लुएंट जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू स्पेंड, मनी से रिलेटेड है, ठीक है, और इसकी जो मीनिंग होती है वो किससे किससे रिलेटेड होती है, कि आप मनी के पैसे को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मतलब स्पेंथ्रिफ हो रहे हो, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता हो। तो जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज होती जाती है उतना ज़्यादा हम पैसा खर्च करते जाते हैं। एफ्लुएंस वी एक्वायर, क्या उतना ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, नहीं। जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज होती जाती है उतना हमारा विजडम ग्रो करता है, दैट मीन्स हमारी बुद्धिमत्ता उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, हो सकता है। फिर द मोर अपॉर्चुनिटीज़ वी सीक, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम लेने लग जाते हैं। द मोर वी बिकेम अवेयर ऑफ आर इग्नोरेंस, द ग्रेटर आर नॉलेज इंक्रीजेज, द मोर वी बिकेम अवेयर ऑफ आर इग्नोरेंस, उतना ज़्यादा हमारा इग्नोरेंस से पत्ता हटता चला जाता है। द मोर वी बिकेम अवेयर ऑफ आर इग्नोरेंस, मतलब जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को इग्नोर करते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, कोई डांट रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हम उसको पलट के जवाब नहीं देंगे, हम टॉलरेंट होते चले जाते हैं, इग्नोरेंस से हम दूर हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इट सेज, राइट। क्राफ्टी वी बिकम, क्राफ्टी का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को बनाने लग जाते हो। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कि जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी उतना ज़्यादा हम इग्नोरेंस से दूर होते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, और दैट इज़ व्हाट वी मीन, द ग्रेटर आर नॉलेज इंक्रीजेज, द ग्रेटर आर नॉलेज इंक्रीजेज, द मोर वी बिकेम अवेयर ऑफ आर इग्नोरेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन। The death of the eminent leader dash to all the citizens of the country. जो eminent leader का मतलब क्या होता है बहुत proficient leader जो थे उनकी डेथ की वजह से क्या हुआ, to all the citizens of the country, कंट्री के सारे ही citizens को, तो stands out in the memory, the death of the eminent leader stands out in the memories to all the memories, अगर लगाते तो memories के साथ off लगना ज़रूरी था, राइट। स्टैंड आउट करते हैं वो मेमोरीज में किसकी मेमोरीज ऑफ द सिटीजन्स, ऑफ ऑल द सिटीजन्स, राइट। तो ऑफ नहीं दिया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए ग्रामेटिकली ही करेक्ट नहीं है। फिर द डेथ ऑफ द एमिनेंट लीडर डैश और अदर लीडर caused enormous sadness and grief to all the citizens of the country. Enormous का मतलब होता है huge, enormous मतलब होता है huge, तो बहुत ज़्यादा दुख बढ़ गया किसकी लाइफ में, कंट्री के सारे के सारे सिटीजन्स की लाइफ में। The death of the eminent leader who put the country's interest first to all the citizens of the country. तो उनकी डेथ की वजह से क्या हुआ ये तो मेंशन ही नहीं है सी में, है ना। What happened in to the death or what happened because the death of that person, ये मेंशन नहीं है सी में, तो सी is eliminated. The death of eminent leader made the people admire his popularity to all the citizens of the country. Death की वजह से वो पॉपुलर हो गए, नहीं, he was an eminent leader. He always took something or he always did something for the people, जो उनको अच्छा जो लोगों के लिए, जो सोसाइटी के लिए, जो उनकी कंट्री के लिए अच्छा हो रहा हो उनके लिए करते थे, राइट। तो यहाँ पर कह रहे हैं पॉपुलैरिटी के बाद वो फेमस हो गए, नहीं, या फिर पॉपुलैरिटी उनको मिली उनके डेथ के बाद, नहीं। May the people recall his sacrifice, अपने sacrifice को उन्होंने वापस दोहरवाया है, नहीं। जो पर्सन एमिनेंट है वो वापस से बार बार बुलवाएगा नहीं आपसे, आप खुद ही समझ जाओगे कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशेंट है, राइट। सो द डेथ ऑफ द एमिनेंट लीडर caused enormous sadness and grief. जो डेथ हुई एमिनेंट लीडर की उसकी वजह से कंट्री के सिटीजन्स बहुत ज़्यादा दुखी थे और ग्रीफ। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, जब उनकी डेथ हुई थी, ही वॉज एन एमिनेंट लीडर, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे जब उनकी डेथ हुई थी। तो पूरे कंट्री के जितने सिटीजन्स थे, तो मे बी ये सेंटेंस उन्हीं के लिए लिखा गया हो कि एमिनेंट लीडर तो थे ही वो, ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे, बहुत सब लोग, लाइक बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, या फिर इफ़ यू टॉक अबाउट द पीपल जो हमारी एज से भी ज़्यादा है, अडल्ट हैं, सबको वो बहुत पसंद थे, सबको। सो ही वॉज एन एमिनेंट लीडर एंड उनकी डेथ से सभी को बहुत ज़्यादा दुखी हुए और बहुत ज़्यादा दुख का इमोशन रिफ्लेक्ट कराया गया था उनकी डेथ पे, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द टेंडेंसी टू अवॉइड प्रॉब्लम्स एंड द इमोशनल सफरिंग इनहेरेंट इन देम इज द डैश। जिस तरह की टेंडेंसी उनकी है, जिस तरह की सोच उनकी है, जिस तरह की सक्षम जितने हैं वो क्या करने के लिए,
प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, इमोशनल सफरिंग को कंट्रोल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो उनके अंदर भरी हुई है, इज़ द आउटस्टैंडिंग एगनी इन लाइफ, इज़ द मेजर रीजन फॉर कैलामिटी, इज़ द only solution left with humanity, is the primary basis of failures in life, and is the best way of leading a life. तो ये कह रहे हैं क्या कि अगर आप इसकी बात करते हो, क्या सेंस आप उसमें रिफ्लेक्ट करवाएंगे, तो कह रहे हैं कि आप अगर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इमोशनल सफरिंग है, इन सब को अगर आप छुपा के रखते हो, अवॉइड करते हो, छुपा के भी नहीं, अवॉइड करते हो कि कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई बात नहीं, आने दो, आगे आने वाले समय में तो ख़त्म हो ही जाएगी ना, अभी हम पास नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म में पास हो जाएंगे, अभी वाले टर्म में हमने नहीं कर पाए क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, अभी हमारी प्रैक्टिस कम थी, नेक्स्ट प्रैक्टिस हम बढ़ा लेंगे. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो टेंडेंसी है अवॉइड करने की प्रॉब्लम्स को और इमोशनल सफरिंग जो भी होती है लाइफ में, जो इमोशनली हम लोगों को बैक कर सकती है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना ही लाइफ को जीने का बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ. आउटस्टैंडिंग एगनी इन लाइफ नहीं होगा. मेजर रीज़न फॉर कैलामिटी, क्या कैलामिटी का तरीका है? कैलामिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो सोसाइटी को हार्म करे, कोई भी ऐसी चीज़ जो ना सिर्फ सोसाइटी को बल्कि हमारे पूरे के पूरे संसार को, वर्ल्ड को, लैंड को, नेचर को, सब चीज़ को हार्म करे. तो यहाँ पर कैलामिटी हमारे रिलेशन में नहीं हो सकता. ठीक है. फिर जो वर्ड लिखा हुआ है, आपका सेंटेंस लिखा है, वो सिर्फ यही सोल्यूशन रह गया है ह्यूमैनिटी के पास. तो सिर्फ यही सोल्यूशन रह गया है कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाना पड़ेगा, तभी वो जी भी सकते हैं. नहीं, हम शेयर कर सकते हैं. फिर प्राइमरी बेसिस ऑफ फेलियर्स इन लाइफ, क्या इसकी वजह से लाइफ में फेलियर्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं. और आउटस्टैंडिंग एगनी इन लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं ज़िंदगी में ये सब करने से. नहीं. ऑप्शन नंबर ई बोलेंगे कि जितना भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होती है उस सबको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना ही. वी हैव टू मूव ऑन, वन शुड ऑलवेज मूव ऑन नो मैटर व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ. सो ऑप्शन नंबर ई इज़ द बेस्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. अब चलते हैं 13th की तरफ. Dash comes from our inability to own up the mess created by ourselves. Dash comes क्या आता है जब हम यही क्रिएट करते हैं कि हम जो प्रॉब्लम्स हमसे हो गई, जो भी तकलीफ या जो भी दिक्कत हमसे हो गई, अगर हमारी वजह से कोई लॉस हुआ है तो हम उससे ओन नहीं करते हैं. हम ये नहीं कहते कि ये मेरी वजह से हो गया है. डैश कम्स फ्रॉम, उससे क्या आता है? डैश कम्स फ्रॉम आर इनेबिलिटी, हमारी जो इनेबिलिटी है कि हम अगर कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम तुरंत बोल देते हैं अरे इसने किया है, अरे मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैंने नहीं किया है. तो ये जो तरीके हैं, इन सब से क्या आता है? डबल टॉक आता है, एग्जैस्परेशन आता है, बैफलमेंट आता है, वैसिलेशन आता है, या फेलियर आता है. तो चलो एक एक करके बात करते हैं हर वर्ड की. तो पहले लिखा हुआ है डबल टॉक. डबल टॉक का मीनिंग क्या होता है? दो तरफा की बातें आती है या फिर दो तरफ की बिहेवियर आपका दिखाई देता है. वन साइड ऑफ द थिंग यू आर पॉजिटिव, लेकिन खुद को पता है दैट यू आर बीइंग नेगेटिव टू एनीवन. आपको पता, आप दूसरे के सामने बोल रहे हो कि मैंने नहीं किया है, लेकिन आपको खुद को तो पता है ना कि आपने ये किया है. तो डबल टॉक की बात हो गई. फिर एग्जैस्परेशन वर्ड है. एग्जैस्परेशन का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से इरिटेट करना. इरिटेट intensely, बुरी तरह से इरिटेट करना. सो वी आर नॉट रेफरिंग टू एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट इरिटेटिंग इंटेंसली. राइट. नेक्स्ट लिखा है बैफलमेंट. बैफलमेंट की मीनिंग क्या होती है? बैफलमेंट मीन्स कंफ्यूज्ड और कंफ्यूज्ड या फिर परप्लेक्स्ड. परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, बीविल्डर्ड, ये सब मीनिंग्स है किसकी? बैफलमेंट की. फिर वैसिलेशन. वैसिलेशन का मतलब होता है जब आप डिसाइड नहीं, आपके पास बहुत सारे ओपिनियंस है, आपके पास 5-4 ऑप्शंस है, अब चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना, आप सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो. इनडिसाइसिव होना. इनडिसीजन मतलब व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन रिलेटेड टू समथिंग. जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, तो हम यूज़ करते हैं इसका. अब बताओ खुद ही क्या होगा कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वैसिलेशन होगा? नहीं. क्या इरिटेट कर रहे हो? नहीं. क्या आप कंफ्यूज्ड हो? नहीं, आप कंफ्यूज नहीं हो. कंफ्यूज का मतलब होता है व्हेन यू डोंट नो, ईदर द पॉजिटिव कैन हैपन और नेगेटिव कैन हैपन, बट हियर यू आर अवेयर दैट दिस हैज़ टू बी डन बाय यू. यहाँ पर आपको पता है कि ये आप ही करेंगे, ये आप ही के द्वारा संपन्न होगा. जब आपको ये चीज़ मालूम है, उसके बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो इससे क्या आता है? डबल टॉक कम्स हियर. Double talk comes from our inability to own up the mess created by ourselves. So option number A is absolutely correct. Now let's move on to the 14th question.
द बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी विल बी लिमिटेड बाय द फैक्ट, टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं वो इस फैक्ट से लिमिट हो जाएंगे, इस फैक्ट से उनके ऊपर रोक लग जाएगी दैट एनी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ बिजनेस विल गिव रिटर्न्स, कि किसी भी टेक्नोलॉजी को बिजनेस में यूज़ कर लो, कुछ ना कुछ करके वो रिटर्न्स तो देगी ही देगी। विल गिव रिटर्न्स ओनली व्हेन अप्लाइड टू एन इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, वो तभी रिटर्न देगी जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाए जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकती। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर ही नहीं सकती तो फिर टेक्नोलॉजी भी क्या ही कर लेगी, टेक्नोलॉजी भी क्या ही कर सकती है। फिर विल गिव रिटर्न्स ओनली व्हेन अप्लाइड टू एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल वो तभी, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता है, या फिर जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको नहीं मालूम है कि इस को आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इस टेक्नोलॉजी को आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो फिर वो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं होगी, राइट, किसी भी काम की नहीं होगी। बट यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें पता है कि इस टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर लगाओगे तो उनको पता है कि उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी से उनको रिटर्न्स भी मिलेंगे और उस टेक्नोलॉजी का वो बेनिफिट भी उठा सकते हैं। फिर the benefits of the technology will be limited by the fact that any technology used in a business will give returns only when applied to an efficient organization, ये तो हमने समझ लिया कि हाँ हो सकता है। returns will when connected to humanity, या only when it is laborious and intricate, या when pursued selflessly। तो ऑब्वियसली बात है, हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर बी कि एफिशिएंट अगर ऑर्गेनाइजेशन, चलो आप, हम कह रहे हैं कि आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, आपने बहुत पैसा है, आपने बेस्ट टेक्नोलॉजी खरीद ली, लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, अगर आप इतने एफिशिएंट नहीं हो कि उसको किस तरह से आप यूटिलाइज़ करके आपके हित में ला सकते हो, तो क्या वो किसी काम की होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर बी का यूज़ हुआ है कि अगर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट, अगर टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लेना है, फ़ायदा उठाना है, तो क्या करेंगे कि इस फैक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी यूज़ हो एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन हो सके। So option number B is absolutely correct for question number 14. Now let's move on to the last question of this session. One of the serious consequences of unethical politics is the dash in our leaders and the system. कह रहे हैं one of the serious consequences, जो serious consequences results हैं unethical politics के, मतलब लोग जो गलत तरीके की राजनीति अपनाते हैं उसके एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, जितने भी गलत उसके प्रभाव पड़ते हैं उन सारे गलत प्रभाव में से एक प्रभाव क्या है, इज़ द डैश इन आर लीडर्स एंड द सिस्टम। वो लीडर्स और हमारे सिस्टम को क्या कर रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ द पीपल, डोमिनेटिंग पावर ऑफ द पीपल, फ्लैगिंग फेथ ऑफ द पीपल, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबिलिटी एंड एलिविएशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो बताओ खुद क्या होगा, जो लोगों का फेथ है वो क्या कर रहा है, फ्लैग कर रहा है, राइट, दैट मीन्स ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है कि अब लोग आपके ऊपर से फेथ हटा देंगे, फ्लैगिंग फेथ ऑफ द पीपल इन आर लीडर्स एंड द सिस्टम। ये जो अनएथिकल तरीके से पॉलिटिक्स का यूज़ हो रहा है, अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं, इसका यूज़ यहीं पर बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। डोमिनेट तो नहीं करेगा, डोमिनेटिंग पावर ऑफ द पीपल नहीं होगा, बट ऑप्शन नंबर सी कैन बी प्लेस्ड हियर एंड हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर, व्हिच मेक्स one of the serious consequences of unethical politics is the flagging faith of the people in our leaders and the system. Now I hope ये सारे questions आपको clear हो चुके हैं, ये end था इस वीडियो का, and there is one exercise जो आपको नई introduce कराई गई है, that is sentence completion. तो अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ताकि यू कैन फिल और यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी पैटर्न दैट कम्स इन योर एग्जामिनेशन. ऑल दिस बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज वी लव यू. बाय. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. बेल आइकन दबाइए, Adda247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए. Adda247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट.